allergic reactions. Allergic करा रहे हैं, vasodilator, histamine release करा रहा है, bradykinin release करा रहा है, there are several mediators which causes the allergic reactions, okay, like histamine, bradykinin and serotonin. They are all involved in those allergic phenomena, okay. These are inflammatory mediators, and there is an anticoagulant which is released, heparin, okay. It prevents the clotting, and it also activates the enzyme that is lipoprotein lipase, जो कि फैट पार्टिकल्स को रिमूव करता है. जब फैटी डाइट लेते हैं ना तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. सो इट इज हैविंग these two important functions. So allergy कौन करा रहा है? बेसिकली बेजोफिल के चलते होते हैं, ओके. एंड व्हाट इज फॉर eosinophil? eosinophil clears, it subsides those allergic phenomena. जब एलर्जी होता है ना तो वहां पे बेजोफिल क्या होता है? एक सब्सटेंस रिलीज करता है, that is called eosinophil chemotactic factor. है तो नहीं लिखा है eosinophil chemotactic factor, वो अट्रैक्ट करता है eosinophil, और eosinophil आता है उसको एलर्जी फेनोमेना को कम करता है. इट रिलीजेस हिस्टामिन, हिस्टामिन को ब्रेक आउट करे, ओके. मास्ट सेल डिग्रेडेशन को उसको इनहिबिट करे, so that the allergic phenomena will be increase or decrease. It will be decreased obviously. So this is the eosinophil. Eosinophil is also bilobed. Please don't talk. Some of you are talking, I will kick you out. From this side. So eosinophil is also bilobed, and it is also having coarse granules. Okay, size भी same होते. Okay, coarse granules भी होते, but granules are take the acidic dye. Okay, red color मिलेंगे, brick red color के मिलते हैं, brick red. Okay, spectacle shape का nucleus होते हैं, and it is involved in mild phagocytosis, weak phagocytosis. Okay, strong phagocytosis कौन करता है? Neutrophil and macrophages. Okay, this is weak phagocytosis. Okay, and also as I have told you, in parasitic infections, जब parasitic infections आ जाते हैं ना तो उस केस में क्या होता है? उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए eosinophil बढ़ जाता है. eosinophil count goes up in parasitic infections, okay, to destroy those parasitic infections, helminthic infections. helminths होते हैं ना, okay, like hookworm, you know, okay, roundworm होते हैं, बहुत सारे होते हैं, okay, helminths. And in allergies this number will increase, eosinophilia will be there, okay. And as I have told you, it will reduce the inflammation, okay, by producing histaminase. histamine को break कर रहे. And another one is aryl sulfatase. aryl sulfatase ये क्या करता है? लिकोट्राइन्स जो होता था उसमें था ना, लिकोट्राइन रिलीज कर रहा था बेजोफिल्स, तो लिकोट्राइन को भी ये ब्रेक डाउन करता है, लाइक हिस्टामिन वो कर रहा है, और एराइल सल्फेटेज इट ब्रेक्स डाउन द, किसको कर रहा है? लिकोट्राइन्स को, स्पेशली लिकोट्राइन B4. ओके, लिकोट्राइन B4 इज अ वेरी पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट. हाँ, कीमोकाइंस बोलते हैं, वेरी पोटेंट. अगर लिकोट्राइन B4 आपने कहीं पे रख दिया तो वहां पे न्यूट्रोफिल आने लगे, वहां पे लिकोट्राइन आने लगे. So it is a very potent chemoattractant. As I have told you earlier, it inhibits the degranulation of mast cells. mast cell burst out नहीं करेगा तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, हिस्टामिन रिलीज कम हो जाएगा. then what will happen? the allergic जो phenomena हो रही थी, है ना, due to the release of histamine, it will be subsided, isn't it? Okay, so it also releases very important enzymes here. ग्रैन्यूल सब में क्या होता है? सारे में पैकेट्स है, उसमें बहुत सारे जेम्स है. ओके, these are very useful products. Okay, and one of these products in the eosinophilic granules is major basic protein. Most important, major enzyme here in these granules, major basic protein. It acts as larvicidal. जो हेलमिन्स होते हैं ना, उसके लार्वा होते हैं, बच्चे जो होते हैं उसके, तो लार्वा को ये क्या करता है? किल करता है. And also eosinophilic cationic protein, eosinophil peroxidase, eosinophil, ये तीनों जो प्रोडक्ट होते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन, eosinophil cationic protein, eosinophil peroxidase, they act on the helminth. It especially acts on the larvicidal. Okay, but these three as a whole they act on the
their growth and it kills you. Okay. Then there is eosinophil derived neurotoxin. ये स्पेशली क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं. कुछ एंजाइम इसके ऐसे हैं जो स्पेशली नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करते हैं. ओके, स्पेशली इन केस ऑफ एल्मिंग, बिकॉज दे आर हैविंग द डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. ओके, so eosinophil is derived neurotoxin. There are phospholipases, phospholipid जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन के लिए. Then aryl sulfatase, I have already told, it works on the leukotrienes. It breaks down the leukotrienes and decreases the allergic reactions, allergic phenomena which is happening, and also histaminase. So a number of products it releases. काफी सारे important products it is having in these granules. किसके granule में? Eosinophil के granules. Okay. Then there are also catalase, and especially इस टाइप के आपको इन्फेक्शन होता है, जर्मेंटिक इन्फेक्शन है, शिस्टोसोमिया इसका नाम सुना है, ब्लैक फ्लू का नाम सुना है, ब्लैक फ्लू बोलते हैं, है ना, शिस्टोसोमिया, कैमोनिकम, अगर माइक्रोलाइजर पढ़ोगे आप तो सारे नाम वहाँ पे आएंगे. देन सिचिनोसिस होता है, पॉक्स के जो बीच जो आंतर को फूट खाते हैं उसको हो सकते हैं, पॉक्स का नाम सुना है ना. तो स्पेशली इस पे ये ज्यादा वर्क करते हैं. Then obviously you should know about the conditions in which eosinophil count gets raised, increase हो जाती है. किसमें increase होगी? सारे allergic reactions में. allergic होगा तो ये बढ़ेगा, उसको ठीक करेगा, है ना. all allergic conditions, whether it is bronchial asthma, वो भी allergic में hypersensitivity reaction है ना. bronchial asthma, hay fever, ये dust वगैरह का जो होता है. then पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट हो गए. पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, एलर्जिक कंडीशन, हुकवर्म, टेपवर्म, राउंडवर्म, सिस्टोसोमियासिस. ओके. देन टीपीई क्या होता है? ट्रॉपिकल पल्मोनरी हिस्टोफीलिया. ट्रॉपिकल पल्मोनरी हिस्टोफीलिया मल्टीपल पूरे लंग्स में क्या होता है, इसको डॉट्स आ जाते हैं. इट इज आल्सो एलर्जिक कंडीशन. देन अर्टिकेरिया, स्किन में क्या होता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है ना. Urticaria, it may cause urticaria. Okay, this is also hypersensitivity reaction. Then scarlet fever, it is a fever caused by streptococcal infection. Sore throat वगैरह कराता है, fever होता है. Okay, so in these conditions ये दो जरूर याद रखना चाहिए, allergic conditions and parasitic infection. At least these two you must know. Then eosinopenia, certain drugs, okay, steroid therapy या cortisol का level increase हो जाता है तो eosinophil count gets decreased. Cushing syndrome बोलते हैं ना, cortisol जब increase होने लगता है, ACTH. Then aplastic anemia, hypoplastic bone marrow. Are you able to understand? Yeah. So we have covered the granulocytes. Okay. Then the lymphocytes. Lymphocytes, you know, B lymphocytes होते हैं और T lymphocytes. But there is another lymphocyte also. What is that? Non-B, non-T lymphocyte. Have you heard of this? Yes, some of you are telling. That is natural killer cells. Natural killer cells. They are also lymphocytes. Okay, around 10 to 15% of the lymphocytes. But they are non-B, non-T. They are also originating from bone marrow. Okay, bone marrow से ही निकलते ही है. So B lymphocytes, it is processed in the bone marrow. B for originally it was discovered in Bursa fabricus, है ना, जो birds थे उसमें Bursa fabricus होते हैं, उसमें देखा गया. So and in humans it is in bone marrow. It is processed. It is matured in the bone marrow itself. Okay, and it produces, all of you know, it produces antibodies from plasma cells. Plasma cells बनाते हैं और plasma cells से antibodies बनाते हैं, है ना, globulin, gamma globulin. And obviously it is concerned with इसके इम्यूनिटी को क्या बोलते हो? ह्यूमरल इम्यूनिटी. तो सब पढ़ा होगा आपने, ह्यूमरल इम्यूनिटी. ओके. एंड टी लिम्फोसाइट्स, इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे हम. टी लिम्फोसाइट्स, it originates from the bone marrow, and apart from the bone marrow it also it matures in the thymus. Okay, thymus में mature होता है. समझ में आ रहा है? मैच्योरेशन कहाँ होता है इसका? thymus में होता है. It does not mature in the bone marrow. Okay, and it is concerned with cell mediated immunity. Cell mediated cytokines release करते हैं ये.
Okay, and through that it destroys. Okay, cell mediated immunity कहते हैं. Another one is non-B non-T lymphocytes. That is called, क्या बोलते हैं उसको? Natural killer cells. Okay, these natural killer cells are highly toxic, especially against viral levels. जहाँ पर virus ज़्यादा होगा ना, उसमें ज़्यादा active है. And also on the cancerous cells, जो cells बहुत अलग हो गया, differentiated हो गया, है ना? तो कैंसर की तरफ जा रहे हैं, उसको चेक करते हैं. Okay, and tumor cells. And it is non-B non-T cells. समझ में आ रहा है? 10 to 15% होता है ये. ओके, विल डिस्कस लैटर. ये इस तरह का मिलता है, यू नो. लिम्फोसाइट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस कवर्स ऑलमोस्ट होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, स्पेशली इन द स्मॉल लिम्फोसाइट्स. स्मॉल लिम्फोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म देयर, रिंग टाइप का चारों तरफ जाएगा बस. ओके, लार्ज में लिटिल बिट मोर. ओके, एंड लिम्फोसाइटोसिस, यू मस्ट नो दैट. देखो, acute infections के लिए कौन से cells होते हैं? WBC. Acute infection के लिए which WBC will come first? Yes, acute infection. Neutrophil. Neutrophil is the first response. Isn't it? Acute infection जब भी होगा तो the neutrophil will work. Okay. And chronic infections में lymphocytes. Okay. Acute के लिए infected mainly the neutrophil, then the monocyte. Chronic में monocyte लिया जाता है और lymphocyte लिया जाता है. So chronic infections, lymphocytosis and viral infection, ये दोनों भी याद रखना है आपको. अगर tuberculosis का पेशेंट है उसमें देखो lymphocyte कौन नहीं रहेगा. ओके, neutrophil कौन नहीं रहेगा. ओके, so and in several viral infections, then in infectious mono काफी सारे डिजीजेस है. आप देखोगे इसमें सिफिलिस है, लिम्फोमा है, बट ये दोनों आपको जरूर याद होना है. ओके, क्रॉनिक इन्फेक्शंस में आपको लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज होगा. एंड स्टेरॉइड थेरेपी पे होंगे तो जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, वो उसके बोन मैरो सप्रेस होते हैं. इम्यूनोसप्रेसेंट जो कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं उसमें हो सकता है हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो. एड्स के कंडीशन में, देन अनदर कंडीशन इज कॉल्ड हॉटकिंस डिजीज. ओके, सो फ्यू कंडीशंस देयर आर इंक्रीज एंड डिक्रीज. ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, इसलिए 2-2-3-3 को आपको याद रहना चाहिए. इंपॉर्टेंट चीज. एवरीवन नोज अबाउट ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया में क्या होता है बेटा? देयर इज कैंसरस प्रोलिफरेशन ऑफ द बोन मैरो सेल्स, है ना? अनचेक्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द बोन मैरो सेल्स. सो बोन मैरो सेल्स क्या होगा? अनचेक्ड हो जाएगा, कैंसरस हो जाएगा, तो क्या होगा? The WBC count will increase or decrease? It will increase. It will increase beyond 50,000. Very high leukocytes. But these leukocytes are immature. They are not differentiated. Okay, they are immature, and it may be of lymphocytic origin. दो lineage होता है, एक lymphocyte को जाते हैं lymphocytic stem cell, दूसरा क्या होता है myelogenic stem cell. तो myelocite सीरीज होता है, एक lymphocyte सीरीज होता है. तो अगर lymphocytic leukemia lymphocyte सीरीज को ज्यादा अगर इंक्रीज कर रहे हो तो lymphocytic leukemia होगा. ओके, और माइलॉइड सीरीज को ज्यादा इंक्रीज कर रहा तो माइलॉइड ल्यूकेमिया होगा. ओके, एंड दिस ल्यूकेमियाज आर वेरी डेंजरस. ये जो सेल्स होते हैं ना, जो कैंसरस सेल होते हैं, वो बोन मैरो से जाकर के वापस पूरे बॉडी में फैल जाते हैं. ओके, आपके लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे, आपके टॉन्सिल्स में चले जाएंगे, आपके डिफरेंट एरियाज में चले जाएंगे और वहां पे डैमेज करना शुरू करते हैं. आपके बोन्स में चले जाएंगे, बोन्स वीक हो जाएंगे. ओके, सो इट डैमेजेस, it goes all over the body and damages the cell tissues. Okay, and usually क्या होता है आपका जो lymphocytic origin का होता है वो जल्दी डेथ हो जाता है. ओके, एंड माइलॉइड ल्यूकेमिया भी ज्यादा दिन तक लिए वो सर्वाइव नहीं करता. ओके, सो दीज आर डेंजरस कंडीशंस. देन कमिंग ऑन टू द मोनोसाइट्स. मोनोसाइट यू ऑल नो हाउ इट इज आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सबसे बड़ा सेल होता है 10 to 18 माइक्रोमीटर. जो WBC में बड़ा सेल कौन है? मोनोसाइट्स है ना, 10 to 18 माइक्रोमीटर का होता है ये. ओके, एंड इसके जो न्यूक्लियस होते हैं
वो इसेंट्रिक होते हैं, इसेंट्रिक होने एक साइड में रहेगा, इसेंट्रिक पुशबैक, ओके, सिंगल विंग होता है, बट इट इज इंडेंटेड, देखो बीच में विंग शेपेड है, किडनी शेपेड और शू शेपेड, ओके, इस तरह के साइड में रहेगा, और इट इज हैविंग द ग्रैन्यूल बट दे आर नॉन एस्पेसिफिक ग्रैन्यूल, तो दिखेगा नहीं है, और साइटोप्लाज्म स्काई ब्लू टाइप का रहेगा, समझ में आ रहा है? And you all know when the monocytes enter into the tissues, it forms the macrophages. Okay, macrophages बनाता है ना, वो जो कि इनगल्फ करता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं उसको. जब न्यूट्रोफिल्स हैंडल नहीं कर पाता तो मैक्रोफेज वहां पहुंच जाता है ना. So what will happen when the macrophages it spreads throughout your body? Okay, अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन के चांसेस है, so there are wandering macrophages. There are fixed macrophages. समझ में आ रहा है? वॉन्डरिंग एंड फिक्स्ड. तो फिक्स कहाँ पे चले जाएंगे? ये ब्रेन में चले जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोग्लिया बोलते हैं, नाम याद रखना. देन लंग्स के टिश्यूज में रहेंगे तो पल्मोनरी एल्वुलर मैक्रोफेजेस, पल्मोनरी एल्वुलर मैक्रोफेजेस. समझ में आ रहा है? देन यू ऑल नो व्हेन इट इज इन द लीवर, साइनोसॉइड्स के चारों तरफ साइड साइड में रखते हैं, साइनोसॉइडल लाइनिंग में, दैट इज कॉल्ड सुपर सेल. सुपर सेल बोलते हैं. देन किडनी में आते हैं तो इसको वेसिकुलर सेल. ओके, देन ऑस्टियोक्लास्टिक सेल इन द बोन. बोन में क्या करते हैं? रिडॉक्शन कराते हैं, बोन रिडॉक्शन. ऑस्टियोक्लास्टिक सेल, they are nothing but the macrophages. Osteoclasts are nothing but the macrophages. Okay, then in the skin they are called Langerhans cells, and in the whole of the, as a whole, in the different connective tissue, it is called histiocyte. Histiocyte is also macrophages. Anywhere in the connective tissue, that is called histiocyte. So there are resident macrophages in your body, all over your body. As I have told, it is also involved in phagocytosis. They are very hardy molecule, isn't it? One thing more actually, when the monocyte is within the blood vessel, circulation में जब है, उसका size कितना बताया आपको? What is the size of the monocyte? 8 to 18. जब वो macrophages बन जाएगा tissue में, इसका size काफी बड़ा होगा. It increases 5 times. Okay, up to 60 to 80 micrometer. Okay, because it can handle more number of bacteria, up to 100. It's not a strong person. So they are big eaters for them. Macrophages. They also kill the tumor cells only when it is sensitized by the lymphocytes. Okay. Then also it is very important that these macrophages, they act as antigen presenting cells. अब क्या होता है जब एंटीजन बाहर जाता है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है. पहले तो आपका इननेट इम्यूनिटी काम करता है. ओके, देन आपका एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होता है, समझ में आ रहा है, वो क्या करता है? आपको जब एंटीजन जाता है तो उसको मैक्रोफेजेस टेकअप करता है. टेकअप करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करता है. ब्रेक डाउन करके उसको प्रोसेस करता है. उसके बाद वो अपने सरफेस पे ले जाता है उसको, समझ में आ रहा है, और उसको जाकर प्रेजेंट करता है टी लिम्फोसाइट्स को. टी लिम्फोसाइट्स को ऐसे नहीं देगा, उसको पूरा प्रोसेस करने के बाद उसको देता है. सो इट इज एक्ट्स एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. समझ में आ रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. देन इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? हैव यू हर्ड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स? These proteins are very important, very important for phagocytosis. जब phagocytosis होता है ना, तो ये complement protein basically liver से आते हैं. complement protein है. Okay, वो क्या होते हैं? Some of the complement protein they work during the phagocytosis. अगर वो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर में जाके उससे अगर डेकोरेट हो गया, so what will happen that the neutrophils will take those bacteria more eagerly. Okay, उसको क्या करता है? टेस्टी बना देता है. So one of the complement protein is C3. Okay, so it acts as a complement. आगे देखेंगे इसको complement system भी आता है, and there are other cytokines. So there are conditions which are causing monocytosis. Okay, it also
एक्ट्स इन द क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी काम आते हैं, है ना. क्रॉनिक में मोनोसाइट्स एंड एज वेल एज लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट जब बहुत क्रॉनिक हो जाता है, 2-3 मंथ्स का अगर इन्फेक्शन है, लगातार काम करना है, उस केस में लिम्फोसाइट्स आते हैं. एंड वीक्स टू डेज करना है कुछ दिनों के लिए, तो मोनोसाइट्स आते हैं. ओके. ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, सब acute bacterial endocarditis, then malaria, Kala-Azar. There are different other infections. Monocytic leukemia, leukemia occurring mainly due to the increase in monocyte count. Monocyte cells पे वर्क कर रहे हैं. पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन अगर रिमूव कर दिया किसी वजह से, समझ में आ रहा है, तो मोनोसाइट वहां पे भी रिजर्व होके रहते हैं ना. स्प्लीन में भी तो रहते हैं, रेजिडेंट स्प्लीन में भी तो रहते हैं मोनोसाइट. ओके, उस वहां से बाहर आ जाएंगे, है ना. पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी वहां रिजर्वायर नहीं हो पाएगा, तो ब्लड में रहेगा ये. देन साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन. देन मोनोसाइटोपिनिया, कम हो जाती है मोनोसाइट्स. नॉर्मल कितना परसेंटेज है मोनोसाइट्स का? मोनोसाइट्स 2 to 8%, यही है ना, 2 to 8% अराउंड. ओके. देन इफ देयर इज हाइपोप्लास्टिक पुल्मोनरी ल्यूकेमिया, that is called hairy cell leukemia. It is a type of leukemia in which B cell, B lymphocyte जल्दी ज्यादा इंक्रीज होते हैं. ओके. और ये एक ऐसा ल्यूकेमिया होता है जो यूजुअली अगर आइडेंटिफाई हो तो ट्रीटमेंट इसका बेटर रिस्पॉन्स ठीक हो जाता है. hairy cell leukemia. देन सेप्टिसीमिया. इसमें क्या होगा? सेप्टिसीमिया इज द टर्म when there is increase in sepsis. इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्लड में हो गया, है ना, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया. ये कंडीशंस हमने देख लिया है सारा. न्यूट्रोफिल इज फॉर मेनली फॉर फाइगोसाइटोसिस. पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं. स्नोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक, एंड इट इज एक्ट एज ए वीक फाइगोसाइटोसिस, इजंट इट. बेजोफिल मेनली इट कॉजेज द एलर्जी, यू कैन से, है ना. एलर्जी कॉज कौन करा रहा है? बेजोफिल करा रहा है. और ठीक कौन कर रहा है उसको? स्नोफिल. यू मस्ट रिमेंबर. ओके. देन लिम्फोसाइट्स फॉर इम्यूनिटी पर्पस. देन मोनोसाइट्स अगेन phagocytosis, and obviously develops into macrophages, converts into macrophages in the tissues. Okay. Then the most important one, that is how the phagocytic mechanism occurs. Phagocytosis, neutrophil or monocytes can be covered. Weak phagocytosis or neutrophil, isn't it? So how this mechanism is happening? ये हो कैसे रहा है phagocytosis, है ना. अगर कोई बैक्टीरिया आया बाहर से, है ना, then how does the neutrophil start coming out from the blood vessel? Circulation से बाहर कैसे आते हैं टिश्यूज में, और वहां जाके किल कैसे करते हैं? There are different stages of phagocytosis. Okay, you must remember. ये सब जानते हो आप? Phagocytosis में cell eating को कहते हो. So the process of ingestion and killing of the microbes which enters, and obviously the neutrophils and the macrophages are involved here. This is important that if the surface is smooth, phagocytic phenomena थोड़ा कम होता है. Rough surface पे ज्यादा better होता है. और dead and decaying जो cells है हमारे बॉडी का, जो dead हो रहा है नॉर्मली apoptotic होते रहती है ना. तो जब लोड होते हैं तो क्या होता है? apoptotic phenomena, तो cramp cells है, हमसे बड़ा होता है, तो apoptotic phenomena होते रहता है. तो जो आपका dead tissues है हमारे बॉडी का, और जो foreign particles जो जा रहे हैं, है ना, उसके लिए क्या होता है? It is more phagocytic. It is more phagocytic. ठीक है. And the complement protein is involved in phagocytosis. Complement protein अभी बताया था ना आपको, C3b होता है. So C3 is acts as a complement protein and it acts as a opsonins. Opsonin का मतलब like a gel, like a butter. Okay, जैसे आप प्लेन बटर खाते हो और प्लेन आप ब्रेड खा रहे हो और ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हो. You taste, it tastes more good for sweet butter with या gel के साथ खा रहे हो. So what happens, that is called opsonin. Opsonin अगर रहेगा तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल ज्यादा अच्छा देगा, ज्यादा एविडली खाएगा, ज्यादा ईगरली खाएगा. Okay. So these are the steps of phagocytosis. First there is margination, vasodilatation followed by margination. Okay, vasodilatation followed by margination. Vasodilatation होगा, margination, pigmenting,
then okay, margination and rolling है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, so margination and rolling. So this diagram you should understand. Okay, इसमें क्या है देखो, जब भी आप suppose that this bacteria has come, you tissues, the layers of bacteria, suppose that this bacteria starts damaging the nearby tissue. Please try to understand. This bacteria starts damaging the nearby tissue. जब टिश्यू जब ब्रेकडाउन होते हैं ना, it releases certain chemicals. It releases certain chemicals that are called chemical mediators of inflammation. Chemical mediators निकालते हैं. Like histamine, बता देना. Especially अगर mast cell अगर डैमेज हो रहा है, mast cell blood vessels के अराउंड होते हैं. Okay. So if the mast cells are getting damaged, it releases histamine, leukotriene, prostaglandin. Okay. Human necrosis factor, काफी सारी चीज रिलीज करते हैं. As a whole, they are called chemical mediators of inflammation. अभी क्या करेगा? These chemical mediators of inflammation, it nearby जो कैपिलरी है, चारों तरफ कैपिलरी रहता ही है, तो जो कैपिलरी नेटवर्क है, all around that, it sends its signal to this circulatory system. कैपिलरी नेटवर्क में जाकर क्या करता है वो अपना सिग्नल देता है. जब सिग्नल देगा तो क्या होगा? it will vasodilate. इसमें यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं. ये कैपिलरी है, इसके चारों तरफ क्या है? इधर लाइनिंग सेल्स है, इसको क्या बोलते हो? इंडोथीलियल सेल्स. क्या बोलते हो? इंडोथीलियल सेल्स होते हैं. इंडोथीलियल सेल्स, इस इंडोथीलियल सेल्स के ऊपर में क्या होता है? बहुत सारे रिसेप्टर डेवलप करते हैं फॉर दोज केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इंफ्लेमेशन. इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? इसको टेकअप करने के लिए इसमें काफी सारे रिसेप्टर डेवलप होते हैं इंडोथीलियल सेल्स के ऊपर. जब हिस्टामिन यहाँ पे आया, जब रेडिकालिन आया, तो हिस्टामिन सपोज ऐसा, तो व्हाट विल हैपन? इट विल डायलेट द ब्लड वेसल. वाइजोडाइलेटर इज हिस्टामिन. तो वाइजोडाइलेट करेगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो विल इंक्रीज और डिक्रीज. ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, वाइजोडाइलेशन होगा, ब्लड फ्लो विल इंक्रीज. तो मोर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, इसमें जो ब्लड फ्लो के साथ में डब्ल्यूबीसीज भी आ रहे हैं ना, न्यूट्रोफिल्स भी आ रहे हैं, तो मोर नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स विल कम हियर. Isn't it? ज्यादा न्यूट्रोफिल्स आएंगे, तो ज्यादा न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है. न्यूट्रोफिल तो जैसे ही डायलेट होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा. ओके, इसका मतलब क्या होगा? रेडनेस लेवल होगा, रेडनेस, है ना. एंड देन एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज. So more WBCs are coming here, isn't it? One thing more it happens under the influence of these chemical mediators of inflammation. ये क्या होता है? ये हिस्टामिन और अदर न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं केमिकल मेडिएटर, तो उसके इन्फ्लुएंस भी जो इंडोथीलियल सेल्स को तो श्रिंक कर रहा है. अरे ये कैसी है? यहाँ पे तो ठीक आ रहा है, इधर बीच में देखो ये पूरा श्रिंक कर गया. These इंडोथीलियल सेल्स श्रिंक a little bit. श्रिंक होगा तो क्या होगा? दोनों इंडोथीलियल सेल के बीच में गैप विल इंक्रीज और डिक्रीज. गैप इंक्रीज हो जाएगा ना, गैप इंक्रीज हो गया और उधर से वो ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल जाते आ रहे हैं, समझ आ रहा है. उसके कारण से जो इंडोथीलियल गैप है, वहां से क्या होगा? न्यूट्रोफिल जाते आ रहे हैं, ब्लड फ्लो जाते हैं, तो फ्लूइड है वो ट्रांजिट करे, बाहर आए. प्रेशर के इन्फ्लुएंस, प्रेशर जाते हो गया, उस प्रेशर के इन्फ्लुएंस से यहाँ पे गैप भी हो गया, तो गैप के थ्रू क्या होता है? फ्लूइड आना शुरू हो जाता है, इधर फ्लूइड आना शुरू हो जाता है, एंड दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन. वो इन्फ्लेमेशन होता है ना, इन्फ्लेम्ड हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है. और ये उल्टा अंडरस्टैंड, यहाँ पे वाइजोडाइलेट हुआ हिस्टामिन के इन्फ्लुएंस में, एंड ब्लड फ्लो हैज इंक्रीज. देन ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कुछ फ्लूइड एक्सुडेट कर गया, बाहर आ गया. देन अगेन व्हाट हैपेंस? दैट these neutrophils under the influence of these chemical mediators of inflammation, it does multiple things. ये chemical mediators of inflammation काफी सारे हुए, it does different changes. Okay, then what does it do? That these endothelial cells start expressing certain adhesion molecules. एक adhesion molecule अपने तरफ रिलीज करता है endothelial cell में,
और उसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एडेजन मॉलिक्यूल स्टार्ट डेवलपिंग स्पेशली इन द न्यूट्रोफिल। पहले न्यूट्रोफिल के लिए आएगा, क्या अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रोफिल। अब ये दोनों क्या होता है, these adhesion molecule you can see here, ये p-selectin एक adhesion molecule है, p-selectin endothelial cell molecule पे आएगा, okay? Under the influence of these chemical mediators of inflammation, what is happening? It is starting expressing certain adhesion molecules. ये adhere करेगा adhesion molecules, तो इसके लिए क्या होगा, certain glycoproteins are developed। तो दोनों क्या होगा, दोनों इधर एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये अट्रैक्ट होने से क्या होगा, यहाँ से लूज अटैचमेंट हो जाता है। These neutrophils are loosely attached with the endothelial cells. That is called, उसको क्या कर रहे हो, मार्जिनेशन। मार्जिनेट हो गया ना, साइड में हो गया, ये सारे लूजली अटैच हो गए, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल प्लस एंडोथेलियल सेल। यहाँ पे p-selectin है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है। अब p-selectin क्यों डेवलप हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कीमोकाइन्स केमिकल मेडिएटर्स, ये दोनों एक दूसरे से लूज अटैचमेंट करेंगे। लेकिन टू बिकॉज दे आर लूजली अटैच, तो व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पे चूंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया था, यहाँ से ब्लड पूज आउट कर गया बाहर की तरफ, तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उधर वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, तो इससे लीव कर रहे हैं, इससे बाहर ले जा रहा है, क्योंकि ब्लड, क्योंकि आपको जो फ्लूइड पार्ट है वो तो इधर चला गया था, तो इट इज लिटिल बिट कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड हो गया ना, व्हाट हैपेंस दैट नाउ द ब्लड फ्लो इज कंसंट्रेटेड, वहां से एग्जिट कर रही है। अब कंसंट्रेटेड होने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस दैट जो आरबीसी होता है, आरबीसी के नंबर ज्यादा होता है, आरबीसी जरूर से जाते हैं, तो आरबीसी कम टुगेदर इकट्ठा हो जाते हैं, और जब ये ऐसे तो डब्ल्यूबीसी बड़े हैं आरबीसी से, समझ रहे, इसलिए क्या होता है, डब्ल्यूबीसी यूजुअली बीच में चलता है, साइड में आरबीसी रहते हैं, और इनमें सबसे पेरिफेरल प्लाज्मेटिक जोन, समझ, तो डब्ल्यूबीसी बड़े होते तो बीच में चलते, लेकिन जब आरबीसी जब इकट्ठा हो गया, एग्रीगेट हो गए, तो क्या करते हैं, वो पुश कर देते हैं, समझ रहे। यहाँ पे जो लूज अटैचमेंट था वो आरबीसी क्या हो गया, इसको पुश करें। लूज अटैचमेंट पहले हुआ था ना, किससे हुआ, p-selectin एंड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, लूज अटैचमेंट हुआ, पीछे से जो एग्रीगेट जो आरबीसी है उसको पुश करता है, तो वो रोल हो जाता है इधर, इस तरह रोल होकर के, है ना, इस तरह से रोल होकर के चला जाता है आगे की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग, मार्जिनेशन देन रोलिंग, ओके। देन व्हाट हैपेंस दैट, देन जैसे रोलिंग होता है तो इसको क्या लगता है, देन these endothelial cells express वो क्या, तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट कराते हैं टू सर्टेन मॉलिक्यूल, ओके, दैट इज कॉल्ड, ये देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होते हैं, इधर ICAM VCAM, ICAM का मतलब इंट्रासेलुलर एडेजन मॉलिक्यूल, VCAM मतलब वैस्कुलर सेल एडेजन मॉलिक्यूल, ICAM और VCAM और प्लस इंटीग्रिन इस पे डेवलप होता है न्यूट्रोफिल पे, दिस इज कॉजिंग द वीक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ओके, टाइट अटैचमेंट। पहले लूज अटैचमेंट हुआ, आरबीसी का उसको पुश कर दिया, तो रोलिंग हो गया, देन देयर इज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, टाइट अटैचमेंट विद ICAM VCAM on the endothelial cell and integrin on the neutrophil. Are you able to understand? Right? I will just repeat it again. Then tight attachment हो गया, तो क्या होगा, एक लेयर बनाता है जैसे स्पेयरमेंटिंग, क्या बोलते हैं उसको, स्पेयरमेंटिंग। पहले क्या हो गया, लूज अटैचमेंट, दैट इज मार्जिनेशन, देन रोलिंग under the influence of aggregated RBC, then tight attachment with integrin and ICAM VCAM। जब यहाँ पे टाइट अटैचमेंट हो जाता है, सपोज यहाँ पे टाइट अटैचमेंट हो गया, then what happens, that starts producing certain other very important special molecules, वो कट करता है ओके, उसको बोलते हैं PCAM इंटरेक्शन, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule 1। अब ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे इन दोनों को पियर्स करते हैं, एंडोथेलियल सेल पियर्स करके क्या होता है, इधर
बाहर की तरफ आते हमारे को नहीं नहीं आ रहा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बैक्टीरिया आया, इसको डिस्ट्रॉय किया, सेल्स को, टिश्यूज को, ये कुछ मॉलिक्यूल्स केमिकल्स निकाला। ये केमिकल के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस होने लगते हैं ब्लड सर्कुलेशन नियर बाय। वो क्या करता है, वैसोडाइलेट किया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, समझ रहे। देन यहाँ पे ब्लड थोड़ा ये जो फ्लूइड पार्ट है वो एक्सुडेट बाहर की तरफ चला गया, वो सही करा दिया, समझ रहे। देन ऑल्सो ये केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल रिलीज होता है, बोथ ऑन द न्यूट्रोफिल एंड द इंडोथेलियल सेल, दोनों तरफ रिलीज करते हैं, है ना। जैसे कुछ बाहर से अगर आ जाता है तो अभी तो आपको एक्सपेक्टेड होता है तो पहले से तैयारी करते हैं, उसी को ही तैयार कर रहे हैं। ओके, तो पहले लूज अटैचमेंट कराते हैं विद द किससे कराया, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द न्यूट्रोफिल एंड हियर पी सेलेक्टिन। ओके, पी सेलेक्टिन, देन लूज अटैचमेंट, देन क्या हो गया, वो एग्रीगेट ऑफ जो आरबीसी है वो उसको पुश कर सर्वाइविंग कराया, उसके बाद जाने लगता है तो उसको टाइटली उसको बाइंड करते हैं, टाइट अटैचमेंट, है ना। टाइट अटैचमेंट विद इंटीग्रिन ऑन द न्यूट्रोफिल एंड आईकैम वीकैम ऑन द इंडोथेलियल करते हैं। टाइट अटैचमेंट हो जिसको पेमेंटिक है, जब टाइटली अटैच हो गए तो उसको पियर्स से बाहर जाना है, यहाँ पे आना है, इसको किल करना है बैक्टीरिया को, यहाँ तो पहुंचना है ना, तो उसको पियर्स करता है। पियर्स किससे करता है, सीकैम, फ्लैटलेट इंडोथेलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, सीकैम इंटरेक्शन, उससे वो क्या होता है, वो पियर्स से बाहर आ जाता है, न्यूट्रोफिल गेट्स आउटसाइड, है ना। तो जैसे न्यूट्रोफिल आएगा इधर बाहर, अब यहाँ पे इसको यहाँ पहुंचना है, तो इसको पहुंचने के लिए क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस बोलते हैं, कीमोटैक्सिस, टैक्सिस मतलब मूवमेंट, केमिकल के इन्फ्लुएंस में टैक्सिस करे। अब उसको बाहर आया तो उसको पता कैसे चलेगा किधर जाना, है ना। उसको डायरेक्शन के लिए क्या होता है, सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज हियर, स्पेशल केमिकल कीमो अट्रैक्टेंट बोलते हैं, है ना। These are Leukotriene B4, अभी बताया था Leukotriene, बताया था आपको Leukotriene B4, they are Leukotriene B4 and C5A, C5 is complement protein, okay। तो ये दोनों it is a very powerful chemo attractant, अगर यहाँ पे आप एक ड्रॉप Leukotriene डाल दो तो न्यूट्रोफिल will start rushing you, okay, and it will create the queue of neutrophil line लगा देगी। So, under the influence of these chemicals, Leukotriene B4 and C5A, वो कीमोटैक्सिस करते हैं, इधर की तरफ पहुंचते हैं। अब यहाँ पे पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या होगा, what will happen? Naturally attack this bacteria. Bacteria is करना, so what will it do? It will यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर में क्या करता है, ऑक्सोनिन मॉलिक्यूल स्टार्ट करता है, ऑक्सोनिन बताया था ना आपको, complement protein, okay, and it increases the phagocytic activity of the neuron, okay, and what it does, that you can see here, ये न्यूट्रोफिल है दिखा रहे थे, और this is the pathogen, is the bacteria, ये बैक्टीरिया के ऊपर में क्या होता है, C3C complement protein, और this is opsonin, and another option, very important option is immunoglobulin G, ये दो ऑप्शनिंग याद रखना है, मतलब immunoglobulin G and G3G, these are very important ऑप्शनिंग, है ना। ये एक बार से आपको ब्रेड के ऊपर बटर या जैम के तरह आपको जैम लगा हुआ है, ज्यादा करता है ना, it will eat faster, so this process is called opsonization, है ना। G3B and IgG इसके लिए रिसेप्टर होते हैं न्यूट्रोफिल, ऑलरेडी रिसेप्टर होते हैं डेवलप करने से, अभी क्या करेगा, इसको इंगल्फ करेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ऑप्सोनिन इट विल ईट फास्टर, आर यू गुड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन, देन देयर विल बी इंगल्फमेंट एंड डीग्रेनुलेशन, समझ रहे। अब इसको जो डाइजेस्ट करेगा वो कैसे करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेगा खाने के बाद, देयर टू प्रोसेस, यदि ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव, है ना। ऑक्सीडेटिव बताया था आपको, तो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करेंगे, ये इसको दिखाया है यहाँ पे,
Chemotactic, same thing is written here. Opsonization, the steps लिखना है. Diagram में बनाना endocytosis. This is oxidative damage. Oxidative damage. Environmental oxygen को take up करेगा इसको. Under the influence of myeloperoxidase, in that it forms superoxide. Superoxide radical H2O2. सारे को बोलते हैं oxygen derived radical. It is very damaging to the neutrophils. And also non-oxidative. Because there are the neutrophil engulf करेगा. इसके ऊपर क्या होता है? There are different granules. Primary granules, secondary granules, whatever नाम है. Tertiary granules. तो primary granules glycoside, acid hydrolysis होता है. Isn't it? Lactoferrin होता है. Isn't it? So there are lysosomes. तो उसके influence में then secondary granules are also there. Okay, bacteriostatic and bactericidal enzymes are there. अगर न्यूट्रोफिल होता है ग्रैन्यूल्स में, फाइन ग्रैन्यूल्स होता है उसके अंदर तो बहुत सारी एंजाइम्स होता है जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं. दैट इज नॉन ऑक्सीडेटिव. दिस इज ऑक्सीडेटिव डैमेज. ओके, सो दैट इज डीग्रैन्युलेशन. सो दीस आर द स्टेप्स यू कैन सी हियर. आईजीजी ऑक्सोनिन है, C3p ऑक्सोनिन है, इसके लिए रिसेप्टर है. इधर देखो न्यूट्रोफिल. ओके, बैक्टीरियम को डेवलप किया, हाइपोलाइसोसोम बनाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय. दिस इज नॉट देयर. दिस इज नॉट देयर. एक्चुअली व्हेन द फाइट इज और इट सर्वाइव्स फॉर 12 to 24 hours of, if the fight is longer, what will happen? What will happen? It all is more stronger fellow, that is macrophages. It calls it macrophages. Okay, or macrophages keep on destroying those pathogens. Isn't it? And it is still larger, longer. महीनों हो गया, 2 months, 6 months चल रहा है. It causes lymphocytes. Isn't it? So in that way, this area, यहाँ पे जो आपका जो around the pathogen, there are, you can see, in that process of destroying the pathogen, therefore neutrophils are also destroyed, macrophages are also destroyed. So मालूम है कुछ भी affected. So in that area, there are a number of dead and decaying neutrophils, dead and decaying pathogens, isn't it? Dead and decaying macrophages also. So as a whole, वहाँ पे क्या हो गया? It's like a battle area, isn't it? So in that area, it forms a pus. Pus is that expression of it. You can write all the dead and decaying neutrophils, dead and decaying pathogens. Okay, dead and decaying cells. cells जो होते हैं जो decay कर रहे हैं. So as a whole, it forms a pus. So this is all the process of आपको phagocytosis. So phagocytosis is important for you in the examination. Stages आपको पता होने. I will little bit I will tell about immunity. हो गया? याद है तो नहीं है? याद है? No. नेक्स्ट क्लास क्या है आपका? एनाटॉमी. नहीं मैं नहीं ले सकता. So immunity is very important, and a little bit you know that thing I want to discuss. Already know these things. What are the types of immunity? Innate and acquired. है ना? Innate by birth होता है ना, और acquired जो आप during your lifetime you achieve, isn't it? So ठीक है, चलो बाद में करेंगे.